First of all, let me know how you select your data, navigate in your data with the help of shortcuts. Yes, Gagan. Control plus A. Sorry, I'm using Nandini, I asked to Gagan, not to you. गगन आपने हैंड रेज I'm किया. using control and arrow keys. Control and arrow for moving, but I ask you how you select your data. I'm using control plus shift plus arrow keys. Yes, absolutely right. Okay, and just a minute, guys. Yes. अभी किसी ने बीच में बोला हेलो. यमुना, you want to ask something? No, ma'am. विश्वायन, आपने बोला कंट्रोल ए, बट कंट्रोल ए से हम होल डाटा सिलेक्ट करते हैं, ना कि डाटा में नेविगेशन करते हैं. ओके, दिस इज फॉर यू विश्वायन. यहाँ पे क्या है, डायमेंशन के हिसाब से पंच जो है सेट कर लिए थे और मैं Okay, many of you are already aware about Excel, but let's start from basic because many of you are not familiar with basic of Excel. You know how to launch Excel? How many buddies know how we launch Excel in our system? Hello everyone. Hope you all are doing well. So I welcome you all to the induction of your advanced Excel batch. So first of all, I'll be like briefing you about what Struveli is. One second. So basically, Struveli Technology Private Limited has a successful track record in the field of academia, research, training, recruitment, and job assistance since its inception in 2018. We also offer training and internship for all levels of professional world. It starts from +2 level to a seasoned professional. We in Struveli Technology emphasize academic and research development as no civilization can survive without education and can't progress without research. We work with each applicant to prepare them for employment ready. Struveli Technology bridges the gap between employer and employee via industry or product specific selection and pre-employment training. Just for a quick look, I am sharing my screen for all the unique services which we Struveli Technology Private Limited holds. So I hope my screen is visible to you all. Yes, ma'am. Okay, so for teaching, like for learning and teaching platform, we have Prayog. For training, for internship training program, we have StuIntern.
For professional resume builder, we have ResumeOcean. For job portal, we have Navrojan. For education, we have Vidyapun. For psychometric test, we have Sudakshta. For research, we have Anusharam. So these are all the services offered by Stu Valley Technology Private Limited. And I hope you will learn from this batch. So all the best all the best to all of you for starting your new batch. So over to you, Amanat ma'am. Okay, thanks, Aju ma'am. Okay, so before getting start to Excel today's session, I show you how to open the Excel. I share my screen. If there already Excel in your system, show on your desktop, or else what you do, type Excel in your search box. Just a minute, I will share my screen. What you have need to do, type Excel in your search box. Here is our application of Excel. If you want to know where is this file located, right click on this Excel icon, as well as you see here is the option for open file location. यहाँ से आपको क्या होगा, आपके अगर आपको नहीं पता कि आपके सिस्टम में आपका एक्सेल कहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्लिक करने से आपको आपके एक्सेल का लोकेशन मिलेगा। और यहाँ से आप क्या कीजिए, पिन टू टास्क बार, पिन टू स्टार्ट। आप क्या करिए, आप अपने एक्सेल को हमेशा टास्क बार पर पिन रखिए, जिससे आप उसको विद इन ए सेकेंड इजिली यूज कर सकते हैं। गॉट इट? और ओपन, क्लिक ऑन ओपन। So this is our welcome screen of our Excel. Excel offer many templates at free of cost. See, welcome to Excel, drop down tutorial, formula tutorial, power query tutorial, pivot table tutorial, और many more templates are there. Excel आपका क्या करता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे काफी टाइप्स के आपको टेम्पलेट ऑफर करता है। और दूसरा, यहाँ पे जो आप नीचे का सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी जितनी भी रिसेंट फाइल्स होते हैं जो आपने रिसेंटली क्लोज की हैं, वो आपका सारा कहाँ होगा, नीचे आपका मेंशन होगा। फिर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ग्रीन सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप, ये आपका होम है, जो हमारी होम स्क्रीन अभी स्क्रीन पर विजिबल है। फिर अगर आपको न्यू फाइल चाहिए तो आप यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सेल फाइल आपके सिस्टम में है और आपको उसमें कुछ एडिटिंग या ट्रांसफॉर्मेशन आपको उसके अंदर करनी है, तो यहाँ क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी जहाँ पर भी जो भी लोकेशन में आपकी फाइल लोकेटेड है, वहां से आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास, आपने कोई ब्लैंक वर्कबुक लिया था, उसमें आपने कुछ वर्क किया, अब आपको उसको सेव करना है, तो आप कहाँ से करेंगे, सेव। अगर आपका वो ऑलरेडी सेव था, आपने उसको रीओपन किया तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सेव। बट हमने अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम उस अपने सिस्टम में एंटर किया है, तो हम हमेशा सेव एज सेक्शन के साथ मूव करेंगे। सेव एज आपको कहाँ, अगर मैं क्लिक करती हूँ सेव एज, तो ये आपसे क्या पूछेगा, लोकेशन, कि आपको कहाँ सेव करना है, पीसी के में, ब्राउजर में, या फिर पीसी के किस सेक्शन में, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप पे, किस फोल्डर में आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हो। फिर क्या है, ये आपका फर्स्ट स्क्रीन ऑफ एक्सेल आपका विजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, start this session, I want to ask you something. You know what is data? Because we all know Excel is for data cleaning, data transformation, data manipulation. सारा काम क्या होता है, Excel पे डाटा का होता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि what is data. Anybody know what is data? Yes, sir. Yes, please ahead. Data is a collection of information. Sorry. Data is a collection of information in the form of row and columns. Yes, data is the collection of information, raw information। जो भी इंफॉर्मेशन आपने कहीं से भी कलेक्ट की है, वो आपकी सोशल मीडिया है
या आपने मैनुअल एंट्री किया है, या कहीं से भी अगर आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, डाउनलोड किया है, डॉक्यूमेंट आपके पास था, तो वो आपका क्या है, जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है वो आपका डाटा है। डाटा है किस फॉर्म में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में, स्ट्रक्चर डाटा होता है एक्सेल के अंदर। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका जो होता है वो होता है कि व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन एक्सेल स्टोर। काफी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि किस टाइप का फाइल हम एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं। सो व्हाट इज योर आंसर? यस आयुष, व्हाट काइंड ऑफ डाटा? स्ट्रक्चर्ड डेटा। ऑब्वियसली अगर एक्सेल में आपका डाटा है तो वो स्ट्रक्चर डाटा है in the form of rows and columns, but kind of data, for example number data, text data, It किस kind टाइप? of any data, मतलब we can store many kind of data in Excel. For Yes, example, in the form of number and sentences and address, Gmail, yes, and you are many. right आयुष। सो आयुष ने कहा नंबर, तो नंबर एक फॉर्मेट होगा, एक हमारा क्या होगा, डाटा टाइप होगा जो हम एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं। फिर आयुष ने कहा टेक्स्ट डाटा, जो उन्होंने कहा सेंटेंस डाटा, आयुष वो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट डाटा या सीएसवी डाटा, क्या बोलते हैं, CSV और टेक्स्ट या सीएसवी। CSV. फिर आता है हमारे पास डेट एंड टाइम, कि कुछ डाटा हमारे पास क्या होता है, डेट और टाइम की फॉर्म में होता है। अब ये थ्री टाइप्स ऑफ डाटा आयुष ने हमें बताए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये है हमारे पास, ये है मेरे पास मेरे डाटा के अंदर, और ये है मेरे डाटा के अंदर, और ये कुछ नेम मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। ऐसे है ये, आपने देखा होगा जब हम कोई ईमेल या जीमेल का लिखते हैं तो क्या करते हैं, टैक्स डाटा और नंबर डाटा को कंबाइन करके करते हैं। और फिर डेट एंड टाइम में काफी बार हमारी डेट क्या होती है, सिर्फ हमें ऐसे अपीयर होती है हमारे डाटा के अंदर। कुछ बार क्या होता है कि टाइम मेंशन होता है, टाइम स्टैम्प के साथ हमें हमारा डाटा दिखता है। तो ये भी क्या है, डेट एंड टाइम की फॉर्म में। अब अब ये तीनों नंबर्स हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? Decimal value. सॉरी, Decimal value. Actually, Nandini, I am not able to hear you clearly. Please write in your chat box if possible. मैम एक इंट है एक फ्लोट में है। यस, वो बट है नंबर फॉर्मेट। तो ये इंट या फिर आप डेसिमल, आप इनको क्या बोल सकते हो, ये हमारे होते हैं फॉर्मेटिंग। कि है तो ये नंबर डाटा, बट इस पे क्या अप्लाई हुआ है, फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। जो आपका 12 है वो किसके अंदर आता है, होल नंबर। है तो नंबर, बट कौन सा नंबर है, होल नंबर, उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। फिर आपका आता है 1 पॉइंट। अब आपको यहाँ पे 12 पे मैंने अपना 12 को एक्टिव सेल जब मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो आपके पास यहाँ होम टैब के अंदर एक सेक्शन है नंबर। यहाँ पर क्या करते हैं हम, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। डोंट डू नॉट नॉट वरी, आपको क्या होगा, सारा एक्सप्लोर कराया जाएगा अच्छे से। बट अभी के लिए मैं आपको, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पर आपका 12 क्या आ रहा है, ये होल नंबर फॉर्मेटिंग है। बट जब आप 1.2 पे क्लिक करोगे तो ये आपका कौन सा है, इस पे डेसिमल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। फिर यहाँ पे RU01, ये आपका क्या है, जनरल फॉर्मेट है। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज कॉल्ड जनरल फॉर्मेटिंग। बट जब आपको सिर्फ करेक्टर्स अवेलेबल होंगे अपने डाटा के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट डाटा। फिर ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं सिर्फ डेट। बट व्हेन वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम, उसको हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प। क्या बोलते हैं,
टाइम स्टैम्प, बट उनका फॉर्मेट जो डाटा टाइप होगा वो डाटा टाइप हमेशा क्या रहेगा, डेट एंड टाइम। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे कि कैसे हम अपने डाटा पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। नाउ आई वांट टू शो यू वन थिंग, गिव मी ए सेकेंड। दीपिका, अभी तक सिर्फ हमने बेसिक कवर किया है कि व्हाट इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा यू एंटर इन योर एक्सेल लाइक दिस, सो नो नीड टू वरी दीपिका। My screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Yes, शिवाराम, आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आफ्टर द क्लास। तो जैसा मैंने आपको कहा कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेसिक ऑफ एक्सेल पता है, बट काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस यूआई पे टोटली न्यू यूजर हैं, जिन्होंने एक्सेल को अपनी लाइफ में कभी यूज ही नहीं किया, बट सुना था कि एक्सेल एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है जिसको हम डाटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, बट दे नेवर एक्सप्लोर व्हाट इज एक्सेल। सो फॉर दैट स्टूडेंट, तो अब उनके क्या डाउट है, व्हाट इज एक्सेल, व्हाई वी यूज एक्सेल, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एक्सेल, एंड this is the topic of quick access toolbar, how we personalize our own excel according to our requirement, and some shortcuts are there. So what is excel? Anyone want to give definition about excel? What is excel? Nobody? Actually, Excel is a tool where we can initialize data and organize data and according to data we will gather some insight. Yes. So first question, what is excel, why we use excel? So excel is a powerful spreadsheet program that allows users to organize, manipulate and analyze data. तो पहले इस लाइन को क्लियर करते हैं कि एक्सेल आपका क्या है, एक स्प्रेडशीट है। अब काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गूगल शीट को और एक्सेल शीट को कंपेयर करते हैं, बट दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। गूगल शीट जो आपका है वो गूगल का प्रोडक्ट है, बट आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके नाम से पता चल रहा है किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये दोनों अलग एप्लीकेशंस हैं। अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू ऑर्गेनाइज से आप क्या समझते हैं, ऑर्गेनाइज जैसा कि एक स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में बताया कि एक्सेल में जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, रोज एंड कॉलम। किस फॉर्म में करते हैं, रोज एंड कॉलम। जब आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, सीक्वेंस में एडजस्ट कर रहे हो, तो वो डाटा आपका क्या है, ऑर्गेनाइज डाटा। तो एक्सेल में जब भी हम एंट्री करते हैं, वेन एवर वी हिट ऑन एंटर, क्या होता है कि हम नेक्स्ट अल्टरनेट रो में मूव करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा सारा डाटा एक ऑर्गेनाइज वे में होता है। फिर सेकंड है आपका मैनिपुलेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द नेम ऑफ मैनिपुलेट? मैनिपुलेट हम उसको बोलते हैं कि हमें, हमारे पास रो डाटा था, बट हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस होने थे, कुछ डिलीशन, कुछ एडिशन, कुछ चेंजेस होने थे। किसी कॉलम को ऐड करना था, किसी कॉलम को डिलीट करना था, कुछ ब्लैंक रिमूव्स करने थे, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने थे एडिशंस के लिए। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं एक्सेल के अंदर, मैनिपुलेशन, कि हमने डाटा में कुछ मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेट आपने सुना होगा। फिर एनालाइज। अब एनालाइज जो मैंने बताया
कि अगर आपके पास आपको आपके क्लाइंट से डाटा मिला, अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको अपने या तो अपने सीनियर से डाटा मिलेगा या फिर आपको डायरेक्ट क्लाइंट के थ्रू कोई भी डाटा आपको मिलेगा। तो उसमें से आपको इंसाइट्स निकालने होते हैं। इंसाइट्स क्या होते हैं कि उसमें से आपको रो जो आपका क्लाइंट है वो रो डाटा में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको नहीं मतलब कि अगर उसके पास 10,000 रोज का डाटा है तो उसको नहीं मतलब कि 10,000 रोज में क्या है। उसको अगर आपका सेल्स डाटा है फॉर एग्जांपल, उसको नहीं मतलब कि कितनी सेल्स पर डे हो रही है, उसको एट द एंड क्या चाहिए कि जनवरी मंथ में हमने कैसा परफॉर्म किया, फेब्रवरी मंथ में हमने कैसा परफॉर्म किया, मतलब कि उसको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ उसको अपना पूरा इंसाइट्स चाहिए कि लास्ट मंथ के कंपेयर में हमने कैसा परफॉर्म किया। ऐसे उसको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, समराइज डाटा चाहिए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी एनालिसिस अगर हम अपने डाटा के अंदर करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं एक्सेल के अंदर। सबसे पहला रूल, आपका डाटा क्लीन होना चाहिए। डाटा शुड बी क्लीन। क्लीन डाटा से अब आप क्या समझते हैं कि उसमें कचरा तो नहीं होगा, एक्सेल के अंदर है तो उसमें कचरा, एक्सेल के अंदर कचरा हम किसको बोलते हैं, ब्लैंक सेल्स, ब्लैंक रोज, ब्लैंक कॉलम्स, डुप्लीकेट रोज, डुप्लीकेट कॉलम्स, डुप्लीकेट सेल्स वैल्यूज, इन चीजों को हम क्या बोलते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो कॉलम है, कॉलम टाइम आपका जो है वो क्या है, नंबर है, बट उसमें एंट्री किस डाटा की हुई, टैक्स डाटा की। तो वो वहां पे कैसा बिहेव करेगा, आपको एरर शो करेगा आपके डाटा के अंदर। अगर आपके कॉलम का डाटा टाइप अलग है और डाटा एंट्री अलग है, जो आपने वैल्यूज के अंदर एंट्री की वो डिफरेंट है आपके डाटा टाइप से, तो वहां पर वो कैसे शो करेगा, एरर शो करेगा आपको। देन इट इज वाइडली यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब हमें समझ आया गया व्हाट इज एक्सेल, वी नो व्हाट इज एक्सेल, बट वेयर वी यूज एक्सेल, what is the benefits of using excel, so why we use and where we use. It is widely used in various fields such as business, finance, education and research for tasks ranging from simple calculations to complex data analysis. कहाँ कहाँ यूज होता है, where we use excel, in hospitals, in IT industry, in startup, in intermediate level companies, in finance companies, in banks, everywhere we use excel. In today's industry your excel is must. I think you already know excel is must in today's industry. If you want to survive in today's industry, so you at least know basic of excel. If you are not pro in excel, so at least you know basic of excel. Then next question is what is benefits of excel, why we use excel. So how many benefits are there, best way to store data. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टअप या इंटरमीडिएट या एमएनसी में भी हम बोल सकते हैं कि आप वर्क करते हैं, तो वहां पे प्रायोरिटी क्या है, अगर आपका जो नंबर ऑफ डाटा है वो ह्यूज नहीं है, स्मॉल डाटा है, तो आपका हमेशा डाटा स्टोर करने का प्रायोरिटी क्या रहेगा, एक्सेल as compared to your database or else. So best way to store data. Second, you can perform calculations. हम क्या कर सकते हैं, हर टाइप का कैलकुलेशंस एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। सम, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये क्या है आपकी बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन। बेसिक टू एडवांस लेवल की कैलकुलेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट सम डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट और डिफरेंट वर्कबुक, so we are able to do that with the help of advanced lookup formulas in excel. No need to use sql hard queries or power bi modeling, we do not need. हमें क्या, अगर हमें एक्सेल में अगर हम प्रो हैं, हमें किसी डाटाबेस की नीड नहीं है, किसी विजुअलाइजेशन टूल की नीड नहीं है, बिकॉज एक्सेल इज स्मार्ट इनफ एंड पावरफुल इन इटसेल्फ। एक्सेल में अगर हमारे पास लिमिटेड डाटा है
तो हम क्या कर सकते हैं, उसी का डाटा उसी में रिपोर्ट एनालिस करके उसी में एक विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हम इस बैच में करेंगे। एट द एंड हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे compete करता है आपका एडवांस एक्सेल टू योर डाटाबेस एंड योर विजुअलाइजेशन टूल। अगर कुछ ड्रॉबैक्स की मैं बात करूं एडवांस एक्सेल के अंदर, तो वो सिर्फ आपका एक लिमिटेशंस है कि एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड डाटा एनालाइज कर सकते हैं। मे बी 10 लाख डाटा आप स्टोर कर सकते हैं एट ए टाइम इन सिंगल वर्कबुक। अगर आपके पास उससे ह्यूज डाटा है तो उसके लिए आपको कुछ प्रो टूल्स के लिए मूव करना होगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट विजुअलाइजेशन, सो यू हैव नीड टू मूव टू योर पावर बीआई, एंड if you want to store your data in something else, so you have need to move into database like SQL, MySQL। फिर टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालाइज करते हैं हम, जैसा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, इजी टू डाटा विजुअलाइजेशन विद चार्ट्स। डाटा को रिपोर्ट करने के साथ साथ डाटा का एक विजुअलाइजेशन भी हम एक्सेल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट रिपोर्ट्स इजीली, इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है एक्सेल। सो मैनी फ्री टेम्पलेट्स टू यूज। ऑटोमेट, you know we make automation in Excel also. Anybody know about that? Heard about macros and VBA? एक्सेल के अंदर क्या होता है कि कुछ चीजें आपको, अगर आप एक्सेल प्रोफाइल के लिए अगर आप कहीं पे भी वर्किंग है तो आपको कुछ चीजें फ्रिक्वेंटली करनी होती हैं आपकी लाइफ में डे टू डे। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एडवांस एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ कोड होते हैं जिससे हम अपनी टास्क को क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। यू मस्ट बी हियर अबाउट मैक्रोज एंड वीबीए। सो उनकी हेल्प से, मैक्रोज एंड वीबीए की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना सारा प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। वो बैक एंड में क्या करता है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता रहता है। देन ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डाटा। फर्स्ट यूज क्या है आपके एक्सेल का, ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डाटा। जब भी हमारे पास डाटा आता है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, एक्सेल हमें पता है इजी टू यूज, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, अगर हमें डाटा को क्लीन करना है तो एक्सेल को देंगे। Got it till here? If you have any doubt, please unmute yourself. नंदनी, डेक्स का यूज हम पावर बीआई के अंदर करते हैं, नॉट इन योर एडवांस एक्सेल। वी यूज डेक्स इन पावर बीआई। ओके, यस। So any doubt till here? Yes, please. Adesh. Ma'am, what is macros? What is macros? Okay, good question. What is macros? Macros का यूज जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोमेट। मैक्रोज आपके क्या करते हैं, अगर आपने अपने डाटा के अंदर सम फंक्शन यूज किया, यू नो बेसिक एक्सेल नंदिनी? Yes, ma'am. ओके, सो आपने अपने एक्सेल के अंदर सम फंक्शन का यूज किया और आपको क्या है, आपको अल्टरनेट डेज पे रिक्वायरमेंट है कि आपको एट द एंड क्या करना है, उन जितनी भी टोटल सेल आपकी हुई उसका सम कैलकुलेट करना है। तो आप उसके डेली क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको, अगर आपको एडवांस एक्सेल नहीं पता तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली अपने डाटा पे एक रेंज सिलेक्ट करना होगा और सम फंक्शन को परफॉर्म कराना होगा। दैट इज योर जनरल अप्रोच। Yes, ma'am. But if you know advanced Excel, and in advanced Excel you know the concept of macros and VBA, तो वहां पर उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास आप एक एडवांस एक्सेल ने आपको एक फ्रीडम दी है कि आपके पास मैक्रोज बटन है एक्सेल के अंदर, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। आपने उसको स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना, फिर आपने अपना सारा कैलकुलेशन परफॉर्म किया कि आपका जो डाटा है जो आप अल्टरनेट डेज पे परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके सेम डाटा सोर्स से आता है। कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में वर्किंग है, आप वहां पर पेपर चेक करते हैं तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल है। ए कॉलम में आपके नंबर ऑफ मैथ मार्क्स है, फिर आपके फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स, एंड फोर्थ कॉलम में आपका क्या आता है, टोटल मार्क्स। तो आपको फोर्थ कॉलम पे डेली क्या है, सम फंक्शन परफॉर्म कराना है।
तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, जो भी आपने कैलकुलेशन की आपने उसको स्टॉप पर रिकॉर्ड किया। फिर एट द एंड आपको क्या करना है, आपको अपने मैक्रो को स्टॉप कर देना है। फिर जब आपको नेक्स्ट डे सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, सेम सेल पे सेम कॉलम पे, तो आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना, आपको अपने मैक्रोज के अंदर जाना है और वहां पर आपके पास एक बटन होता है रन। जितने भी मैक्रोज आपने वहां पे स्टोर किए होंगे, रिकॉर्ड किए होंगे, तो which macro you want to use, click on it and your calculation is performed automatically. Okay. Okay. Yes, this is the use of macro, and VBA is the coding language। जो मैक्रो आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, वो आपके लिए आपके फ्रंट एंड में आपको शो हो रहा है कि आपका जो प्रोसेस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, बट बैकएंड में तो ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस होता है, राइट। Yes, तो ma'am. बैकएंड में जो सॉफ्टवेयर जिस लैंग्वेज पे वर्क कर रहा है, एम लैंग्वेज, उसको हम क्या कहते हैं, VBA, विजुअल बेसिक एडिटर। ओके, सो Okay, दैट okay, इज ma'am. योर VBA। Okay, thank you. ओके, मोस्ट वेलकम। सो नाउ व्हाट इज क्विक एक्सेस टूलबार। अब क्विक एक्सेस टूलबार आपका क्या होता है कि जब आप न्यू यूजर हैं एक्सेल पे, और जैसा मैंने अभी नंदिनी को बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम एक्सेल पर काम करते हैं तो हम जिनको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, आपको पता होगा जो बेसिक ऑफ एक्सेल जिनको पता है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल Z, कंट्रोल X, ये कुछ ऐसी कमांड है जिनको हम डेली यूज करते हैं, और इन ए डे वी यूज मैनी टाइम्स, राइट। 10th of times, 12th of times, we use multiple times। तो उनके लिए आपके पास एक फ्रीडम है आपके एक्सेल के अंदर। आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो आपका फर्स्ट स्क्रीन है एक्सेल का, आई शो यू प्रैक्टिकली, गिव मी सम टाइम। My screen is visible to all of you? Can you please anyone confirm me? Yes. Yeah. Yes, ma'am. ओके ओके Yes, ओके। ma'am. सो अब हमने कवर कर लिया कि अब जो एक्सेल पे न्यू यूजर थे, अब उनको पता है कि व्हाट इज एक्सेल, व्हाई वी यूज एक्सेल, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सेल। तो अब वो रिलेट कर पाएंगे जो भी हम पढ़ेंगे। वेलकम पेज हमने देखा एक्सेल पे कि कहाँ से हमें सेव करना है, कहाँ से हमें एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, कहाँ से हमें न्यू फाइल को ओपन करना है, इफ वी वांट न्यू फाइल इन आवर वर्कबुक। तो ये चीजें हमने कवर किया। अब जब हम फर्स्ट स्क्रीन की बात करते हैं एक्सेल के अंदर, तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट स्क्रीन है, बट डिफरेंट आपका क्या है, उसमें आपको ये डाटा नहीं मिलेगा, ये सारा ब्लैंक होगा। अभी ये प्रैक्टिस के लिए हमने डाटा रखा है, सो ये आपका फर्स्ट स्क्रीन होगा। अब मैं बात कर रही थी क्विक एक्सेस टूल बार कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। तो जो आपका सबसे जो आपको एक ग्रीन सेक्शन अपीयर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो आपको दिख रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये कैसे हेल्पफुल है आपके लिए। अब मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसे होती है जो हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, और उसके लिए हमें मल्टीपल टैब्स को यूज करना पड़ता है। इफ आई वांट टू कॉपी दिस P कॉलम, तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल C, 2 कमांड्स मुझे यूज करनी होगी, क्या, कंट्रोल C। बट अगर मेरे अब यहाँ पर अगर मैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितनी कमांड्स है, न्यू 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 से आप क्या समझ रहे हैं, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, मेरा न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। बट अगर मेरे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये न्यू फाइल अवेलेबल ना हो, तो मुझे कितने टैब्स एक्सप्लोर करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइल पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना होगा, और फिर मुझे क्या मिलेगा, अपना एक ब्लैंक वर्कबुक मिलेगा। बट मेरे इसके अंदर
क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ कमांड्स को ऐड किया है. फॉर एग्जांपल Ctrl+N फॉर न्यू वर्कबुक, O ओपन फाइल फॉर open existing document, filter for for my data, Ctrl+C copy. बिकॉज हमें इन कमांड्स का क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स हमें नीड होता है, तो मैंने क्या किया, इन सभी कमांड्स को आपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड किया. अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे सिर्फ ये कमांड्स चाहिए जिनको मैं मल्टीपल टाइम्स यूज करती हूँ, बट मे बी योर रिक्वायरमेंट इज समथिंग डिफरेंट. So how you customize your quick access toolbar? If you are in your system, so let it check कि आपका और मेरा क्विक एक्सेस टूलबार सेम नहीं होगा. कि मैंने जो कमांड्स इसके अंदर ऐड की वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग की है, बाय डिफॉल्ट कुछ और होती हैं, और आपकी अगर आपने ऑलरेडी अपना जो क्विक एक्सेस टूल बार है पर्सनलाइज किया है अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट, तो आपका मे बी समथिंग डिफरेंट आपका क्विक एक्सेस टूल बार आपको अपीयर होगा. तो जो फर्स्ट सेक्शन हमने देखा इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके नाम से भी हम समझ पा रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार, कि जल्दी से जिन टूल्स पे हम एक्सेस कर सके उनको हमने कहाँ ऐड किया है, अपने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर. सो वी आर बैक टू अवर पीडीएफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कस्टमाइज कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, बट नाउ इज योर क्वेश्चन हाउ वी कस्टमाइज इट according to our own requirement. So here is step customization. What do you understand with the name of customization? Users can customize the quick access toolbar by adding frequently used commands. जैसे मेरी commands मैंने क्या किया, new, open, filter, Ctrl+C, undo, redo, क्योंकि इनकी मुझे नीड होती है टाइम टू टाइम. फिर including those not found on the ribbon. This allows for quick access to commands without navigating through multiple tabs. जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया कि अगर मुझे न्यू वर्कबुक फाइल ओपन करनी है तो मुझे मल्टीपल टैब्स एक्सप्लोर करने पड़े, बट इफ आई यूज माय क्विक एक्सेस टूल बार तो विद इन ए सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा. गॉट इट. फिर इसको कस्टमाइज कैसे करना है, बिल्ट इन कमांड्स. द क्विक एक्सेस टूल बार includes a set of commonly used commands such as save, undo, redo, and print. Users can easily add or remove commands according to their preference. आपका जितना भी commonly use आपकी commands होती हैं उनका सारा एक स्टोरेज इन्होंने बनाया और उसको क्या नाम दिया है, क्विक एक्सेस टूल बार. तो उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन कमांड्स. फिर आता है एडिंग कमांड्स. How we add. To add a command to the quick access toolbar, users can right click on any command in the ribbon and select add to quick access toolbar. Alternatively, they can click on the drop down arrow at the end of the quick access toolbar and choose more commands to select from a wider range of options. Let's see practically now. So this is our file. Here is the drop down icon for customize quick access toolbar. Click on it. Here you have option for more commands. Click on it. See how many commands are there. अब इसमें आपको नीड है, जैसा मैंने नंदिनी मैम को बताया कि हमें अल्टरनेट डेज पे क्या करना पड़ता है, सम यूज करना पड़ता है. तो आप सम को अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं. और इफ यू वांट सेव, कि आपको हर 10 मिनट्स में क्या करना पड़ता है, अपनी फाइल को सेव करना होता है, तो आप सेव कमांड को यूज करना पड़ता है. आपका डाटा मल्टीपल टाइम्स दिन में ट्वाइस ए डे क्या होता है, अपडेट होता है. आपको रिफ्रेश टाइम टू टाइम अपने डाटा को करना पड़ता है. हम रिफ्रेश ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. जो भी हमें ऐड करना है वो हम ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे डाटा कॉपी पेस्ट बहुत करना पड़ता है, तो मैंने कॉपी ऑलरेडी अपने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मेरे है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. अब मुझे पेस्ट भी करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक ऑन इट. Here you have one dialog box with the name of add icon. Click on it. Now simply click on OK. See, now paste is in your list of quick access toolbar.
Which shortcut we use for paste? Press V. यस, कंट्रोल वी। तो हमने उसको भी क्या कर लिया, अपने डाटा के अंदर ऐड कर लिया। अब उसके बाद आपके पास आता है आपका रिबन टैब। क्विक एक्सेस टूल बार का आपको पता चल गया कि आपको उसको कैसे पर्सनलाइज करना है अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। कुछ नहीं करना, सिंपल है, यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी कमांड पे क्लिक करके, और डायल जो एडिंग का डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर था मेरी स्क्रीन पे, उस पे क्लिक करना है और क्लिक ऑन एट द एंड क्लिक ऑन ओके, और वो आपके लिस्ट में यहाँ आपको टॉप पे आप पे को अपीयर होगा। फिर उसके बाद आता है आपका रिबन। रिबन आपने सुना होगा, बट मे बी किसी को ना पता हो कि व्हाट इज रिबन इन एक्सेल। तो जो ये सेक्शन आपका है इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन टैब। तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, और इन टैब्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, जिसको हम जैसे जैसे हम अपना एक्सेल कवर करेंगे हर टैब को एक्सप्लोर करेंगे, उसका यूज केस देखेंगे कि वेयर वी यूज होम टैब, वेयर वी यूज इंसर्ट, व्हाई वी यूज पेज लेआउट, एंड वेयर वी यूज फॉर्मूला सेक्शन ऑल्सो। सो दिस इज योर रिबन टैब। फिर उसके रिबन टैब के जस्ट नीचे आपको नेम बॉक्स। नेम बॉक्स से आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्लिक ऑन दिस सेल, माई एक्टिव सेल इज appear टू यू ऑल. So I want to ask you, can you please identify these cells? What is the identification of this cell? X9. Sorry, X9. 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 How you are able to know that is X9? And column name. The position of the rows and columns. Okay, with the help of column name and row number, you are able to know that is X9 cell. But see, in your left hand side, one name box dialog box is appear, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो भी रेंज या जो भी सेल आपका एक्टिव होगा उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन है। अभी हम किस सेल में, X9, तो आपके नेम बॉक्स में क्या विजिबल है, X9, तो इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। और जब भी अगर हम सेल आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो उसके लिए आपका एक अच्छा वे क्या है कि combination of column and combination of row. With the help of this combination, we are able to know, we are able to identify the cell. फिर आपका नेम बॉक्स के राइट हैंड साइड में आपको क्या है, फॉर्मूला बार। जो भी कैलकुलेशन हम एक्सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं वो फॉर्मूला आपका कहाँ पर अपीयर होगा, आपके फॉर्मूला बार के अंदर। तो ये आपका फॉर्मूला बार है। फिर उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये ABCD आपके कॉलम है। फिर आपके 1 2 3 इनको हम क्या बोलते हैं, रो, और इनके कॉम्बिनेशन को D, इफ आई एम हेयर इन E2, तो आपने क्या किया, इनके कॉम्बिनेशन को, E आपका कॉलम है, सेकंड आपकी रो है, तो E2 का कॉम्बिनेशन एक क्या क्रिएट कर रहा है, सेल क्रिएट कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम को हम क्या कहते हैं, सेल। आई थिंक नाउ यू आर टू मच फैमिलियर विद द एक्सेल। Anyone have any doubt till here? Please unmute yourself and let me know. Any question? No, ma'am. Okay. No, ma'am. So now this is your data. This is your dummy data. You can see we have two yellow section. 1, 2. We have two yellow section in this data. I want to delete this yellow highlight section. What is your general approach for that? If I want to delete this column, how I delete? If you know basic Excel, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि how many students know basic of Excel? जब काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए थे, सो आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कैसे करेंगे। Ma'am, for deleting the column C, you can Yeah. click on the C icon and delete it. So the whole column will be gone. And for deleting the row number 3, you can do the same.
click on 3 and delete it. So the whole row will be gone. ओके, सो ये एक जनरल अप्रोच है. अगर अब मैं आपसे कहूँ हाउ वी डू विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स. मैम कंट्रोल माइनस आई थिंक. कंट्रोल माइनस, ओके गुड. बट कंट्रोल माइनस से पहले आपको एक उसको रेंज देना होगा ना कि व्हाट यू वांट टू डिलीट. Yes, ma'am. We have to select that particular portion हाउ आई सिलेक्ट. with the help of selecting any rows. If we want to delete the C column, we have to select the C. तो यही तो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, हाउ आई सिलेक्ट सी कॉलम विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट. Control space. कंट्रोल स्पेस, Yes, ओके. ma'am. If I in this cell I press control space, now what I need to do? Control minus. Right, what is your good name? Vishwayan. Okay, good job Vishwaya. Okay, ma'am. Okay, so now whatever things I'm going to teach you, implement in your Excel file. After the class I share this data with you all and implement it in your system. Okay, everyone tell that if you are Excel expert then no need to touch or use mouse. सुना होगा आपने कि अगर हम किसी एक्सेल एक्सपर्ट की बात करते तो हमारे माइंड में एक इमेज उसकी फिक्स है कि अगर वो एक्सेल एक्सपर्ट है तो उसको क्या है, माउस या फिर कीबोर्ड टच करने का ही नीड नहीं है, वो कीबोर्ड से सब कुछ कर सकता है. राइट, एक माइंड हमने ये सेट कर रखा है कि इफ एनीवन वाज एक्सेल एक्सपर्ट देन नो नीड टू टच और यूज माउस. So definitely we are going to start with shortcuts because with the help of shortcuts we are able to do that. Even I'm not saying that you need to remember all shortcuts. You just try and find what are the shortcuts in day-to-day life you will use. Okay, so first of all we cover navigation concept. जो first question मैंने आपसे पूछा था, how you will navigate in your data with the help of shortcuts. So I show you something. I am on this cell. On which cell? A4. Cell name A4. Now if I want to move right side, so what is my general approach? तो उसमें एक, sorry, so what is my approach? Control and press right arrow. तो क्या हुआ, अब मेरा क्या हुआ, रो आईडी से ऑर्डर आईडी पे मेरा मूव हो गया, बट आई वांट टू मूव ऑन माय लास्ट कॉलम. तो ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? अगर आपके डाटा में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप किसी भी डाटा पे वर्क करते हैं तो डाटा क्लीनिंग इज मस्ट. सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप एक्सेल पे अगर आप कर रहे हैं तो आपका डाटा शुड बी क्लीन. तो अब हमारे डाटा में तो क्या है, ब्लैंक कॉलम है, ब्लैंक रो है, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ पर हमारी मूवमेंट स्टॉप हो गई, बी कॉलम पे, बिकॉज सी कॉलम में हमारा क्या है, ब्लैंक कॉलम. नो नीड टू वरी, वी विल रिजॉल्व दिस इशू इन फर्दर क्लासेस. बट नाउ आई वांट टू, अब कंट्रोल और राइट एरो की हेल्प से मैंने मूव तो किया, बट नाउ आई वांट टू सिलेक्ट दिस डाटा with the help of shortcut. So what is my approach? This time I press control shift right arrow. अब जब हमने कंट्रोल और एरो प्रेस किया तब हमने क्या किया था, ए कॉलम से बी कॉलम में सिर्फ मूव किया था, बट जब हमने कंट्रोल शिफ्ट और एरो प्रेस किया तो क्या हुआ, मैंने ए कॉलम के साथ साथ बी कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया. नाउ आई वांट टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, so again need to press control shift down arrow. तो मेरा क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, मेरा डाटा क्या हुआ, 11th रो तक सिलेक्ट हो गया, 12th रो पे आके मेरा प्रोसेस स्टॉप हो गया. क्यों हो गया, बिकॉज इन 12th रो वी हैव ब्लैंक रो. तो आपका अब आपको पता चल गया कि मूव कैसे करना है, कंट्रोल और एरो की हेल्प से. बट whenever you want to select your data, so you have need to press control shift and your arrow key if you want to move in horizontal direction or in
right direction, so you need to press Control Shift right arrow. And if you want to move in left direction, so Control Shift left arrow. If you want to move in downward direction, Control Shift downward. As it is, Control Shift upward if you want to move in upward direction. Got it till here? Yes, ma'am. ओके अब हमने क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा नेविगेशन का, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम नेविगेशन कैसे करेंगे। अब नेविगेशन तो देख लिया, बट वहां पर हमने इशू फेस किया कि हमारा जो सिलेक्शन था वो इन ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम की हेल्प से क्या हो गया, बीच में ही स्टॉप हो गई हमारी प्रोसेस। तो उसको रिजोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिलीट करना होगा। सो हाउ आई डिलीट? First of all, if you have need to delete this C column, select any cell of your C column, any cell of C column, and press Control space key, Control space key, and press Control minus. क्या प्रेस किया हमने? कंट्रोल माइनस की हेल्प से आपका क्या होगा, आपका कॉलम डिलीट हो गया। अब आपको क्या करना है, रो भी डिलीट करनी है। तो रो के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस की। कॉलम के लिए क्या किया, कंट्रोल प्लस स्पेस की। बट नाउ आई एम ऑन दिस सेल इन माय थर्ड रो, सो व्हाट वी हैव नीड टू प्रेस फॉर रो सिलेक्शन, शिफ्ट प्लस स्पेस की। शिफ्ट और स्पेस की हेल्प से आपका क्या होगा, थर्ड रो सिलेक्ट होगा। नाउ अगेन वी हैव नीड टू प्रेस कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस इज फॉर डिलीशन। जो भी रेंज आपने सिलेक्ट किया है, अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस स्पेस की, और फिर आपका जो भी कॉलम आपका सिलेक्ट हुआ उसके लिए आप कंट्रोल माइनस की हेल्प से उसको डिलीट कर सकते हैं। और रो को सिलेक्शन के लिए आपको क्या प्रेस करना होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस की। तो आपको समझ आ गया क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं परफॉर्म, रो सिलेक्शन के लिए क्या करना है और कॉलम सिलेक्शन के लिए क्या करना है। कंट्रोल माइनस इज नॉट फॉर कॉलम डिलीशन। कंट्रोल माइनस आपका क्या करता है, जो भी रेंज आपका सिलेक्ट आपने किया है उसके बाद अगर आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो जितना भी एरिया आपका सिलेक्टेड है वो सारा क्या होगा, आपके डाटा से डिलीट हो जाएगा। अब जब हम नीचे मूव कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर फिर से काफी रोज दिख रहे हैं। इफ आई क्लिक ऑन दिस सी कॉलम, सो वी हैव टोटल ऑलमोस्ट 10,000 रो, राइट। तो अब 10,000 रो को मैं मैनुअली तो चेक नहीं कर सकती, इट इज टफ टास्क फॉर मी। तो अगर मैं कहूँ आप इसको विद इन ए सेकेंड अगर आप इसको कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, यू हैव नीड टू प्रेस कंट्रोल जी। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल जी। फिर एक इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपको स्क्रीन पर अपीयर है, यहाँ पर आपको इस स्पेशल रेडियो बटन को क्लिक करना है। नाउ फॉर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ब्लैंक्स, कि हमें क्या करने हैं, ब्लैंक्स डिलीट करने हैं अपने कंप्लीट डाटा सेट से विद इन ए सेकेंड। नाउ क्लिक ऑन ओके। सी माई प्रोसेस इज गोइंग ऑन, डाटा इज प्रोसेसिंग। अब आप यहाँ पर देखिए कि मेरी फर्स्ट 2 रो क्या थी, ब्लैंक थी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। 11th रो हो गई। जितना भी नीचे मैं स्क्रॉल करूं मेरी सारी ब्लैंक रोज क्या है, सिलेक्टेड है। जानना नहीं है। तो आपको क्या करना है, नाउ यू हैव नीड टू प्रेस कंट्रोल माइनस। अब जब मैंने कंट्रोल माइनस प्रेस किया तो एक इस टाइप का डायलॉग बॉक्स मेरी स्क्रीन पर अपीयर है। वो क्यों है, वो पूछ रहा है आपसे कि जो डाटा, जो रो आपका यहाँ से डिलीट होगा तो उसके जो नीचे का डाटा है उसको कहाँ शिफ्ट किया जाए, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो लेफ्ट का तो यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं होगा, तो हम किस ऑप्शन के साथ मूव करेंगे, शिफ्ट सेल्स अप, ताकि जो मेरा 12th रो का डाटा है वो कहाँ शिफ्ट हो जाए, 11th रो में, और मेरा ये डाटा ब्लैंक से क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, राइट। सो वी सिलेक्ट शिफ्ट सेल्स अप एंड क्लिक ऑन ओके। अब आपके डाटा में कहीं अगर अब मैं फिर से कंट्रोल जी प्रेस करूं और चेक करूं कि मेरे डाटा के अंदर ब्लैंक्स हैं या नहीं, तो हमारा
संस्कृति म्यूट योर सेल्फ प्लीज। तो इस बार इसने आपका क्या किया, इसने आपके जहां तक आपका डाटा था, आपके डाटा में उसको कहीं पर भी ब्लैंक वैल्यूज नहीं मिली, तो उसने डाटा के साइड का कॉलम, ब्लैंक कॉलम सिलेक्ट कर दिया। बट वो हमारे डाटा में इन्वॉल्व ही नहीं है, हमारा डाटा कहाँ तक है, टिल यू। तो वो संस्कृति प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो ये हमने क्या किया, हमने अपने डाटा को कंप्लीट क्लीन कर दिया। अब हमारे डाटा में ना कोई ब्लैंक रो है, ना कॉलम है, ना कोई सेल है, कोई चांस ही नहीं है कि हमारे डाटा के अंदर। हमने क्रॉस चेक भी किया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल जी। तो हमने शॉर्टकट की हेल्प से क्या किया, कॉलम का सिलेक्शन किया, कॉलम को डिलीट किया, रो का सिलेक्शन किया, रो को डिलीट किया, फिर क्या किया, सारी सेल्स है या फिर कॉलम्स है या रोज को है, हमने एक कमांड कंट्रोल जी की हेल्प से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया अपने डाटा से। अब मेरा सेकंड, अब मैं जब नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये मार्क्स स्टूडेंट्स का डाटा है मेरा, जैसे मैंने पहले भी नंदिनी को ये एग्जांपल दिया था कि ये आपका क्या है, इंडेक्स कॉलम, फिर आपके नंबर मैथ के मार्क्स है, साइंस के मार्क्स है, इंग्लिश के मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स है। एट द एंड मुझे क्या परफॉर्म करना है, ये टोटल मार्क्स है ई कॉलम, फिर एफ आपका एवरेज मार्क्स है। ऐसे क्या है, 3-4 आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है हर स्टूडेंट्स के लिए, रैंक निकालनी है या कुछ भी। तो एट द एंड आपको उनपे फंक्शन अप्लाई करने हैं। बट जब मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे ई कॉलम में क्या करना है, सेल्स पर सम चाहिए, मुझे ई कॉलम में सम चाहिए या एवरेज चाहिए। ऐसे ही एफ कॉलम में मुझे टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए या एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट चाहिए। फिर मैं रैंक में कंफ्यूज हो गई कि ये मेरा रैंक कॉलम है या मेरा एच कॉलम रैंक है। क्योंकि मैं क्यों कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मुझे मेरा कॉलम हेडर ही अपीयर नहीं है। जब मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो मेरा कॉलम हेडर क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। तो अपने कॉलम हेडर को हमेशा क्या करना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए, ताकि कोई भी कैलकुलेशन आप उसके एंड में परफॉर्म करें तो आप मेक श्योर कर सके कि आप अपनी कैलकुलेशन अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्रीज कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अपने कॉलम हेडर को सिलेक्ट कीजिए। अब डाटा को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट हम यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो आपको वन टाइम प्रेस की और आपके क्या हुए, एट द एंड तक के सारा कॉलम नेम आपका क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब अंडर व्यू टैब, अंडर विच टैब, अंडर व्यू टैब वी हैव ऑप्शन फॉर फ्रीजिंग। सी here is your option for freezing. When you click on it, 3 option is there. Freeze pane, पेन से आप क्या समझते हैं कि आपकी रो और कॉलम मीन्स आपका पूरा जो आपका स्क्रीन है वो क्या होगा, फ्रीज होगा। आप उसमें आपके कॉलम्स भी फ्रीज होंगे और आपकी रोज भी फ्रीज होंगी। बट सेकंड ऑप्शन आपके पास है फ्रीज टॉप रो, कि आपका सिर्फ जो फर्स्ट रो है वो आपका फ्रीज होगा, बाकी आपका डाटा क्या है, चेंज होता रहेगा। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे जिस भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपका डाटा मूव होगा। फिर थर्ड ऑप्शन आपका है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, कि आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट कॉलम ये है इंडेक्स कॉलम, तो आप अगर चाहते हैं कि आपका इंडेक्स कॉलम फ्रीज हो जाए तो आप इसको भी फ्रीज कर सकते हैं। बट नाउ व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, वी ऑलवेज मूव विद आवर रिक्वायरमेंट्स। अपने डाटा को चेक करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हमें देखनी है कि क्या है। तो अभी हमारे डाटा की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हमें टॉप रो को फ्रीज करना है। तो क्लिक ऑन दिस फ्रीज टॉप रो एंड आई गिव सम कलर आल्सो। तो अब जब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं मूव कर रही हूँ तो मेरा जो हेडर ऑफ कॉलम है मुझे अब भी मेरी स्क्रीन पर अपीयर है, राइट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम हेडर को फ्रीज कर सकते हैं। अंडर व्यू टैब यू हैव ऑप्शन फॉर फ्रीजिंग, सो ऑलवेज मेक यूज ऑफ इट। सो हाउ इज टुडे, तो आई थिंक time is over now, it's already 4:03. So if you have any doubt till here, please unmute yourself and let me know. Yes, ma'am, I am having one doubt. Yes, Tejas. Ma'am, suppose there is a single cell which is empty, for example, blank cell. Okay. And if we select that blank cell and if we shift that column up
So, ma'am, that data means, for an example, there is only one blank cell. So, Okay. ma'am, if we shift that up, then ओके ओके, आई विल अंडरस्टैंड तेजस। तो इस जब इस टाइप का सिनेरियो आपका होता है तो मोस्टली या तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज को डुप्लीकेट, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल जिस मैं हूं अभी, आई मीन दिस सेल F35। तो अगर मेरा आपका क्वेश्चन है कि अगर मेरा सिर्फ F35 ब्लैंक है और मेरे F36 में क्या है डाटा, अब मैं इसको लेफ्ट में भी शिफ्ट नहीं कर सकती, राइट में भी शिफ्ट नहीं कर सकती, डाउन में भी नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे डाटा का क्या होगा, एक्यूरेसी गलत हो जाएगा, राइट। yes, ma'am. तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो जैसे अब कस्टमर आईडी है, या तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपने जो आपके किसी और सेल की वैल्यू है, या तो आप उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दीजिए सेम वैल्यू को। या फिर सेकंड केस आपका क्या होता है, उसमें आप उस रो को ही आपको डिलीट करना होगा। जिस रो में आपका वो ब्लैंक सेल अवेलेबल है, तो आपको उसको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। Okay. दो केस आपके पास है, या तो आप कॉपी पेस्ट कीजिए किसी दूसरे सेल की वैल्यूज को उस सिंगल सेल के अंदर, या फिर आप उस कंप्लीट रो को डिलीट कर दिए। सपोज यू हैव 10 lakhs ऑफ डाटा, राइट। Okay. तो अगर 10 lakhs ऑफ डाटा में से एक सिंगल सेल में हमारे ब्लैंक वैल्यू है, या फिर वो सेल आपका नल वैल्यू है, कंसीडर करते हैं हम उसको, तो सिंगल रो से हमारे उस 10 lakhs डाटा में मे बी 1% भी इफेक्ट नहीं होगा, राइट। तो जब ऐसा केस हमारे पास आता है तो या तो हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं किसी और सेल की वैल्यूज को, या फिर हम उस कंप्लीट रो को डिलीट करेंगे इन दिस सिनेरियो। Okay. आई थिंक यू गॉट इट, बट आई वांट टू से यू। And ma'am, what in the case of if there are multiple blank columns are present in our data set? If multiple blank columns, so you have need to press only Control G. With the help of Control G, you make your selection and press Control minus and always select shift cells left. अब for example आपका F कॉलम भी ब्लैंक है, आपका I कॉलम भी ब्लैंक है, आपका L कॉलम भी ब्लैंक है। मैं क्या करूंगी, कंट्रोल जी प्रेस करूंगी, ब्लैंक्स रेडियो बटन पे सिलेक्ट करके क्या करूंगी, अपने सिलेक्शन को क्रिएट कर लूंगी। मेरा सारे कॉलम जितने भी ब्लैंक कॉलम्स मेरे अवेलेबल हैं मेरे डाटा के अंदर, वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। No, ma'am. अब Ma'am, actually, I'm talking about multiple blank spaces in between the columns and rows. So, ma'am, in that case, should we drop all the rows which contains the black column, a blank column? ब्लैंक कॉलम की अगर, वही तो मैंने Sorry, बताया, blank cell. I'm so sorry. ब्लैंक सेल्स। तो Yes, ब्लैंक ma'am. सेल्स के साथ आप उसी के साथ मूव कर सकते हैं, कंट्रोल जी एंड कंट्रोल माइनस। आपको उन रोज को क्या Okay, करना okay. होगा, ड्रॉप करना होगा। Drop. Okay. Thank you, ma'am. ओके, एनी I again repeat, if anyone have any doubt till here, please unmute yourself and let me know. Sanskriti, you have any doubt? So if you do not have any doubt, so we will wind up our today's session still here. So अगर आपका कुछ फीडबैक है आज के सेशंस के अकॉर्डिंग, आपको समझ आया तो आप बता सकते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया, किसी को लगा कि मैम गोइंग लिटिल बिट फास्ट, so please let me know. I will try to resolve this issue also. Ma'am, we will be having classes daily at 3 p.m. No, twice in a week. On Wednesday and maybe I think Saturday. आपका जो ग्रुप काउंसलर आपका होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगा आपके ग्रुप के अंदर। ओके Okay, ma'am. ओके, हम रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। yes, all recordings are available on your portal. And one thing I want to tell you all, कि हमेशा ट्राई कीजिए कि आप पोर्टल से ही ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप पोर्टल से ज्वाइन करेंगे तो ही आपका अटेंडेंस मार्क होगा वहां पर। ओके, अदरवाइज वहां पर आप अब्सेंट कंसीडर किए जाओगे। ऑलवेज ट्राई टू
join with portal. कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकते हैं आप, असेसमेंट टाइप, Sorry, please. प्रैक्टिकल टास्क कुछ दे सकते हैं आप? Practical tasks, yes. After 2-3 class I always give you assignment. You have need to submit it on my on portal also. Okay. Ma'am, so that will that be real life problems or will it be like hypothetical tasks that will be given to us? See, जब तक हम डैशबोर्ड क्रिएट नहीं करते तब तक मैं आपको क्या 2-3 क्लास आपकी कवर करने के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो एक डमी डाटा सेट के बिहाफ पे मैं क्रिएट करूंगी. ओके. बट जब हमारा एडवांस एक्सेल कंसेप्ट कंप्लीट होगा तो एट द एंड हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जो हमारा एक रियल डाटा सेट को हम यूज करके क्रिएट करेंगे. गॉट इट? Okay, ma'am, got it. Okay. Any more doubt here? Ma'am, this internship is of 1 month, right? No, this is not for 1 month. This is for 3 months. We are not able to cover advanced Excel in just 1 month, right? Okay, ma'am. So this is for 3 months. Ma'am, there is no charges will be applicable in this internship, right? Yes. Hello, Yes. ma'am. When will we receive the internship letter? After the completion of your this training, advanced Okay, Excel training. okay. After 3 months. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, Okay. we will be getting an offer letter for it. इसका तो कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकती. आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं इसके बारे में. क्लासेस रेगुलर नहीं रहेगी रोज? रेगुलर नहीं, ट्वाइस इन ए वीक. ओके ओके. अल्टरनेट डेज होंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे, आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. आपको जब भी आपकी क्लासेस होंगी तो उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टाइम भी और आपके डेज भी. ओके. ओके. नो नीड टू वरी. Okay, ma'am, it is of 3 months, that is July, August, and September. Yes, right. Okay, ma'am. Okay, I will stop my screen now. Yes, ma'am. Thank Any you. more doubt? Okay, we wind up our today's sessions. Now next class में मिलते हैं. Okay, bye everyone. Okay. Thank you. Thank Bye, you. ma'am. Thank Bye you. everyone. Have a nice Keeping that. Bye.